यहाँ पे आपको जो चीज कंसीडर करना है वो थोड़ा सा दिमाग में रखने की, इस जगह पे वेलोसिटी Vx और Vy की हम अगर बात करें तो Vy जो है इस जगह पे इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर Vy हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने Uy को जीरो पुट किया था, लेकिन यहाँ Uy जीरो नहीं होगा। अगेन इसमें आपको जो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, x नॉट इक्वल टू जीरो, y नॉट इक्वल टू जीरो, ux क्या है, देखिए ये है ux इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा, एंड दिस वन इज uy विच इज इक्वल टू u sin ऑफ थीटा. So uy is u sin of theta and ux is equals to vx is equals to u cos of theta. Velocity, initial velocity along x-axis and final velocity along x-axis वो सेम रहेगी u cos of theta, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। h यहाँ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, r is the horizontal range. So डियर स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, किस तरीके से हम एंगुलर प्रोजेक्शन में अलग अलग पॉइंट्स जो है कैलकुलेट करते होते हैं, तो उनको समझ लेते हैं। इसके अलावा आपको वो पॉइंट भी ध्यान रखनी है, ax हमेशा जीरो और ay इक्वल टू प्लस माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कंसिडर करके चलेंगे। प्लस कब लेंगे, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस कब लेंगे, जब वो प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप माइंड में रखना ताकि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा इसमें, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो ट्रेजेक्ट्री ये फॉर्म कर रहा है वो किस तरह की है, इसके बारे में हम इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगेन, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, motion along x axis, that can be written as x minus x naught is equals to uxt plus में half axt square, where x naught is equals to 0, ux is equals to u cos of theta and ax is 0. So by putting this value we can calculate x is equals to uxt 0, x naught 0, sorry ux is u cos of theta into t. So this is the value of x, or from here the value of t is equals to x divided by u cos of theta. So this is the value of t. Again, motion along y-axis, motion along y-axis. So along y-axis we can say that y minus y naught is equals to uyt plus half ayt square. Again, as you know, y naught is 0, uy equal to u sin of theta and ay which is equals to minus of g as it is moving upward. So by putting this value we have y equal to uy, that is u sin of theta into t minus 1 by 2 gt square. So this is the value of y. If someone asks the position of projectile at any instant, then you can say that the position of projectile at any instant, that is pxy. So value of x is equals to u cos of theta into t, and the value of y u sin of theta minus half gt square. So this is the position of the projectile at any instant.
By knowing the value of u, theta and t, you can easily calculate the position where the actually particle is placed at a particular time t. So now by putting the value of t in this equation, we can find the type of path of the trajectory or the projectile. So y is equals to u sine of theta into t. So t is x divided by u cos of theta minus 1 by 2 gt square. T square, that is x square divided by u square cos square theta. So u will get cancelled and you will have y is equals to x into sin theta divided by cos theta, that is tangent of theta, minus this is g x square divided by 2u square cos square theta. So this is the equation, and this is also an equation of parabola. So easily we can say that the trajectory followed by the projectile is parabolic. As this is the equation of parabola, so the path covered by projectile is parabolic. Okay, so the path will be parabolic. I hope आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर आपसे किसी प्रोजेक्टाइल के पाथ के बारे में डिस्कस करता है और इक्वेशंस पे जाता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो. कई बार हमारे न्यूमेरिकल में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है और उसमें हमें इक्वेशन और पाथ जो है फाइंड आउट करनी होती है, तो इस तरीके से आप जा सकते हो. सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट करेंगे. यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं. So time of flight, as we studied previously, that the time of flight is defined as the total time spent by the projectile in space. So जैसे ही हम प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो करते हैं और जब तक वो ग्राउंड पे वापस रीच नहीं करता, उसने जो भी टोटल टाइम स्पेंड किया है स्पेस के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट. यहां आपको एक चीज दिमाग में ये रखनी है कि जो भी टाइम उसने लिया है यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक रीच करने के लिए, उतना ही टाइम ये ऊपर से नीचे आने के लिए भी लेगा. सो इफ द प्रोजेक्टाइल टेक्स टाइम t to reach the highest point, then it will again takes the time t to reach the ground from highest point. Okay, now the time of flight. अब कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट. आपको इसके लिए फिर मैंने बताया कि किसी भी डेरिवेशन पे जाने से पहले आपको पहले का पॉइंट जो है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हम क्या चीज लेके चलेंगे, वो चीज आपके माइंड में होना चाहिए. मैंने आपको यहां पे बताया हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है वो 0 हो जाती है. ये कैसे होती है ये भी बता देता हूं. यहां पे किसी भी प्रोजेक्टाइल की दो वेलोसिटीज का हम बात कर रहे हैं, टू कोऑर्डिनेट्स में, Vx एंड Vy. जो Vx है इट रिमेन्स कांस्टेंट, बट द वैल्यू ऑफ Vy, दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग y एक्सिस चेंजेस टाइम टू टाइम. As the projectile moving in upward direction, the value of Vy decreases gradually and becomes 0 at highest point, and again it starts increasing when it moving from highest point to ground. तो ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो हम यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं मोशन अलोंग y axis, motion along y axis. So that can be written as Vy is equals to Uy plus Ay t. V is equals to U plus At.
ये फॉर्मूला मैंने यहां पे यूज किया है। अब इसमें जो आपको पॉइंट्स ध्यान रखनी है वो क्या क्या। सबसे पहले एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू 0, यू वाई में नो चेंज, यू वाई initial velocity along y-axis, that is a u sine of theta. Ay, when the projectile moving in upward direction, so ay will taken as minus g. Small t is the time from here to here. So t plus t, small t plus small t is equals to capital T, total time of flight. So small t plus small t is equals to capital T, or you can say that 2 small t is equals to capital T, or small t is equals to t capital T divided by 2, total time of flight divided by 2 small t को represent करता है. So putting these value in above equation, Vy 0, Uy that is u sine of theta minus g t divided by 2, or you may write it as g t divided by 2 is equals to u sine of theta, or t is equals to 2 u sine theta divided by g. So this is the time of flight. This is the time of flight. That is 2 u sine of theta divided by g. By knowing the value of initial velocity of the projectile and the angle on which it was projected, you can easily calculate the time of flight. So 2 u sine theta divided by z. If you wants that the particle or the projectile spent maximum time in the space, then theta must be maximum. Maximum, that is theta is equals to 90. That means if any projectile projected vertically upward, it will spend maximum time in the space. So I hope ये point आपको clear हुआ होगा. Next हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. सो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने अभी कैलकुलेट किया, t इज इक्वल टू 2 u साइन थीटा डिवाइड बाय g. नाउ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, थर्ड पॉइंट अपना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. horizontal range, that is R. So how to calculate horizontal range? Horizontal range is the max displacement covered by the projectile along x-axis during its flight. पूरी फ्लाइट के दौरान उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया along x-axis, उसको हम क्या कह रहे हैं, horizontal range. So again horizontal range किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. As we know, velocity is equals to displacement upon time. So we have to calculate displacement. That is R is equals to velocity Vx into t, time of flight. Vx, that means the velocity along x-axis. और velocity along x-axis हमने पढ़ा है कि वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है. और कैपिटल T यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है. सो इजीली यू मे राइट इट एज u साइन ऑफ थीटा, u cos ऑफ थीटा. Vx इज इक्वल्स टू Vx and Ux is u cos of theta into capital T. Capital T, that is 2 u sin theta divided by g. और R is equals to u into u square 2 sin theta cos theta divided by g. अब ये 2 sin theta cos theta ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है. इसको हम लिख सकते हैं 2 sin theta cos theta can be written as sin of 2 theta. याद रहे, sin of twice of angle. So R is equals to u square sin 2 theta divided by g. So this will be the horizontal range.
ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल and the angle on which it was projected. G is again constant, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहां जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, हम किसी भी पत्थर को या बॉल को हम थ्रो करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे अलोंग द एक्स एक्सिस। तो जैसे इसमें हमारे ऐसे बहुत सारे एथलेटिक गेम्स हो गए, जैसे जिसमें आपने देखा है कि जेवलिन थ्रो करना होता है, ठीक है। जो प्लेयर है वो जेवलिन को इस तरीके से पकड़ता है और कुछ ऐसे पोजीशन बनाता है और वो दौड़ कर जाकर के उसको थ्रो करता है सो दैट कि वो जेवलिन जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। इसी तरीके से डिस्कस थ्रो भी करना, डिस्कस जो थ्रो किया जाता है उसमें भी क्रिकेट बॉल हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे थ्रो करना है तो हम कुछ इस तरीके की पोजीशन जो है बनाते हैं और हाथ की पोजीशन जो है हम ग्राउंड के साथ में इस तरीके से बना लेते हैं सो दैट कि इट मेक्स 45 एंगल विद द ग्राउंड। जब 45 डिग्री एंगल होगा ग्राउंड के साथ में, उस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी जितनी हम दे सकते हैं तो उससे वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहां पे भी ये चीज देखी जा सकती है। अगर हम आर को मैक्सिमम चाह रहे हैं, आर को अगर हम मैक्सिमम चाह रहे हैं तो ये थीटा कितना होना चाहिए? थीटा मस्ट बी, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन R is equals to u square sin 2 theta, 2 into 45 divided by g, sin 45 into 2 that is 90, so sin 90 कितना होता है? 1, so this will be equals to u square divided by g। sin 90 की जो वैल्यू होती है sin 90 is equals to +1, ये मैक्सिमम होती है, ठीक है। सो आर मैक्सिमम कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी, ठीक है, ये यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। फॉर्मूला ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। हमारा जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, अगर उसको थ्रो किया जाए विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, इट विल कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या हॉरिजॉन्टल रेंज कहने का मतलब सेम रहेगी। ये चीज प्रूव किया जा सकता है। मेरी बात समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या मतलब है? अगर मैंने यहां 30 डिग्री पे इसको पहले थ्रो किया विद यू वेलोसिटी, उसके बाद मैंने 90 माइनस 30 करोगे तो 60, तो 60 पे भी अगर उसी वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे तो हर बार जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ये प्रूव किया जा सकता है। चलो इसको चेक करते हैं किस तरीके से। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे हम। फॉर्मूला ये है आर, सबसे पहले हम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा हो, देन R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 दैट इज थीटा डिवाइड बाय जी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अगर थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा कहने का मतलब क्या हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो इन दैट केस द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा दैट इज 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी, और R2 यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 इंटू 2 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय जी, और R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। देखिए साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन पे कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो तो साइन ऑफ ही रहेगा। तो ये साइन ऑफ 180 माइनस थीटा है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन ऑफ थीटा ही लिखा जाएगा। यहां पे ये साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये क्या है, सेम है एज दैट ऑफ R1। ठीक है। सो अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हम थ्रू करेंगे विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, इट विल एक्वायर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो इससे ये चीज क्लियर होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है उसको कैसे ड्राइव करेंगे। मैक्सिमम हाइट, इसको H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। मैक्सिमम हाइट से मतलब है जो फ्लाइट है, जो हमने ट्रेजेक्ट्री बना रखी है, जो पाथ बना रखा है प्रोजेक्टाइल का, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जब थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा ग्राउंड से, उसी को हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में मेथड है मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ये स्टार्टिंग जो है ना किसी भी डेरिवेशन की, वो आपको पॉइंट दिमाग में, माइंड में सेट करना पड़ेगा। सो मोशन y माइनस वाई नोट ये लेके चलेंगे हम, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब कौन सी वैल्यू जो है हम यहां पुट करें, किस किस चीज को हम वेरी करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं रफली। y जो है यहां पे h को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, एंड y नोट विच इज अगेन 0, uy is u sin of theta, ay minus of g, upward motion y minus of g, स्मॉल t ये कैपिटल T डिवाइड बाई 2 है। स्मॉल t यहां से यहां तक का जो टाइम है वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, y h माइनस 0 इक्वल टू यू वाई यू साइन ऑफ थीटा into small t, that is capital T divided by 2 minus half g t square, that is t square by 4। ये बन गया हमारा, माइनस कहां से आया, माइनस जी पुट किया। t की वैल्यू भी आपको पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 u sin थीटा डिवाइड बाय जी। अब हम यहां पे t की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, u sin थीटा divided by 2 into capital T, that is 2u sin theta divided by g, minus 1 by 2 g t square, ये 4 into 2 8 हो जाएगा, 8 बना लो इसको, ठीक है, और into t square that is 4 u square sin square थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर। जी विल गेट कैंसिल, 4 से इसको 8 को हमने 2 पे कैंसिल कर दिया, ये 2 कैंसिल हुआ। सो इन दिस वे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी माइनस 1 बाय 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी। देखिए ये और ये चीज सेम है, ये हाफ है, ये 1 है, सो वी कैन से दैट ये बच जाएगा हमारे पास h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ठीक है, ये है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। On which factor it depends? Again,
it is directly proportional to square of initial speed of the projectile, angle with which it was projected. So h is equals to u square sin square theta divided by 2g. For maximum height, अगर हम चाह रहे हैं मैक्सिमम हाइट तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो कितने एंगल पे हम उसको थ्रो करें, तो थीटा अगेन इट मस्ट बी 90 डिग्री. थीटा अगर हम 90 डिग्री करेंगे तो हमारा जो for theta equal to 90 degree h will becomes maximum हाइट. और मैक्सिमम हाइट जो है ले सकता है साइन 90 क्या होता है 1, स्क्वायर करोगे 1 का 1 ही रहेगा. सो दैट अगेन इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g ये रहेगा. और आपको प्रीवियस रिलेशन भी याद होगा, यू स्क्वायर बाय जी क्या था, यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज को. सो एच मैक्सिमम इक्वल टू आर मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 ये भी लिखा जा सकता है. आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे. बाय द वे, आपसे अगर इस तरीके का कोई फिगर दे देता है और थीटा जो है हमने वाई एक्सिस के साथ ले लिया है, तो डजेंट मैटर थीटा आपका ये था, हमने एक्स एक्सिस के साथ लिया था, तो इसको आप 90 माइनस थीटा करके करोगे. जहां जहां पे थीटा लिया वहां पे 90 माइनस थीटा लेकर के ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हो. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रह गया वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट. तो उसको करते हैं. velocity of projectile at any instant. प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा वो अगेन v इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हम लेके चलेंगे. vx that is motion along x axis. So vx can be written as ux plus axt. vx ux क्या था हमारा, u cos ऑफ थीटा, और ax आपको पता है कि 0 होता है हमेशा, तो ये पोर्शन 0 हो गया. vx u cos ऑफ थीटा वो हमें पहले ही पता है कि vx ux हमेशा क्या लेके चलेंगे, u cos ऑफ थीटा. नेक्स्ट है मोशन अलोंग y एक्सिस. मोशन अलोंग y एक्सिस. अब vy uy प्लस ayt. सो vy इज इक्वल्स टू uy u साइन ऑफ थीटा माइनस ay दैट इज g इंटू t. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ vy. Now, using the above relation, you can find the velocity of the projectile at any instant. Velocity of projectile at any instant. So, v equal to vx square plus vy square अंडर रूट. अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये वो करके देख लीजिए. vx स्क्वायर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस vy दैट इज u साइन थीटा माइनस gt होल स्क्वायर. सो बाय पुटिंग द फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर, this will becomes u square cos square theta
प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2UGT साइन ऑफ थीटा अंडर रूट, कंप्लीट अंडर रूट के अंदर है, ये साइन थीटा इसके साथ है। सो वी, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म में से यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। टर्म क्या बचेगी, सिर्फ यू स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये प्लस नहीं माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस बी है तो माइनस 2UGT साइन ऑफ थीटा। तो ये जो है हमारी वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2UGT साइन ऑफ थीटा, ये रहेगी। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट क्या रहेगा, तो अगेन आपके पास में मेथड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बीटा आप इसको कंसीडर कर लीजिए और ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, तो ये हमारा परपेंडिकुलर जो है ये क्या रहेगा, Vy और ये Vx। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी tangent of beta is equals to Vy divided by Vx. So tangent beta can be written as Vy, that is Vy की वैल्यू हमारी क्या आई थी निकल के, ये थी u sin थीटा माइनस GT डिवाइडेड बाय Vx यानी u cos of थीटा। So by this formula you can calculate the angle, or you can say that the direction of resultant velocity at a particular point. तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था वो एंगुलर प्रोजेक्शन मैंने कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ जो काइनेमेटिक में एक लेक्चर और मैं आपको सर्कुलर मोशन का दूंगा, तो हमारा काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इन पे न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं काइनेमेटिक्स कंप्लीट करके ही इनके न्यूमेरिकल आप लोगों को कुछ करवाऊंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से स्टार्ट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है, अभी तक आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सच में जो है इस टाइप में लग रहा है कि दुनिया पढ़ा रही है ऑनलाइन, और हमें भी ऑनलाइन पढ़ना है, अपनी मर्जी से कभी पढ़ लेते हैं। लेकिन जो लेक्चर आपका डेली का है उसको डेली अटेंड कीजिए, और कोशिश करें कि जितना ज्यादा आपसे हो सकता है उतना काम करके देखिए। आदत डालिए सेल्फ स्टडी की, हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को आप जो है सीरियसली लेके चले और ग्रो करवाइए चैनल को। अपने फ्रेंड्स से जितने भी नेट यूजर हैं उनको कहिए कि अपना चैनल सब्सक्राइब करें। आप खुद लेकर के भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने आपको टारगेट दिया था कि कम से कम 15-20 बच्चों का या 10 कम से कम लोगों को जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करने में कोई हर्ज भी नहीं है, जरूर। सो डियर स्टूडेंट, इट्स एनफ फॉर टुडे। वी विल meet in the next lecture with some more important points. Thank you and have a nice day.